Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study Modern Indian History, class 12th NCERT of the chapter is first chapter, part 1, India in 18th century. Right? 18th century में इंडिया के क्या हाल थे, इंडिया कैसा था, हम ये पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में. Right? And in today's class I'm also going to give you some homework questions. आज की क्लास में मैं आपको कुछ homework questions भी देने वाली हूँ. And this is part 1 of chapter 1. Chapter 1 का part 1 है. We'll cover part 2 also, don't worry, but this is part 1 because it's a big chapter, so we are going to cover it in parts. ठीक है. Now before starting the class, here's a small announcement for all of you that the class PDF will be uploaded on my Telegram channel, and also the announcement is regarding your Unacademy Plus batches. Unacademy पे 9th November, that is from tomorrow, the batches are starting, right? And these batches are going to be very helpful for all of you because in these batches I am also going to cover the modern and medieval Indian history part. Modern complete, medieval complete. पूरा complete modern medieval history मैं cover करने वाली हूँ इन batches में. These batches are in 3 languages. First is bilingual, then Hindi batch and English batch. So you can choose the batch according to your preference. आप अपने language preference के हिसाब से अपना batch choose कर सकते हो. ठीक है? तो do give it a look, and also you can get 10% discount if you use this code Sharma20. अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको इजीली 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन बैचेस पर. ठीक है. सो डू think about it, go through the batches, the link is given below in the description box. इसके फीचर्स आप देख सकते हो और एक बार जरा सोचना जरूर इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, because we are going to make sure that you are prepared from prelims till interview level. इन तीनों levels की preparation हम इन batches में आपको करवाने वाले हैं. चलो let's start the class then. क्लास शुरू करते हैं without any delay. So in today's class we are going to study the decline of Mughal Empire. ठीक है. आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? These will be the topics that we are going to cover. Decline of Mughal Empire, how the Mughal Empire declined, right? And then we are going to study the penetration of Europeans into India and why they found it very easy to enter India. कैसे उनको इतना easy लगा इंडिया में enter करना, उनके लिए इतना easy कैसे हो गया. Okay, so that we are going to study that how they were able to enter India without any trouble, without any problem, and how Britishers they established themselves in India. Britishers कैसे अपने आप को establish कर गए इंडिया में, and what challenges Britishers also felt or also faced while establishing themselves in India. इंडिया में खुद को establish करते वक्त Britishers ने भी क्या challenges face किया, हम वो भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Let's start the class. शुरू करते हैं. Now starting में हम ये पढ़ते हैं पहले तो कि when the Mughal Empire was still there in India, what kind of people started entering India and what was their purpose? तो लोग किस मकसद से इंडिया में एंटर कर रहे थे? with what purpose people were trying to, Europeans were trying to enter into India? What was the purpose? Okay, so first of all the basic purpose was, तो आपका basic purpose अगर हम बोले वो था trade. It was the basic purpose, trade and exploration. They wanted to explore. देखो कोई नई चीज आपको मिलती है तो आप explore करने लगते हो ना. When you find something intriguing, something new, something unique, you try to explore that, right? So for Europeans also, Indian land was a new land, right? They had heard about India. This land was new, the culture was new, the culture was unique, religion was unique. So trade and exploration were the foremost reasons why they entered into India. The landing of Vasco da Gama at Calicut in 1498. Now in this line there are 3 points that are important for prelims. इस एक लाइन में 3 चीजें prelims के लिए important है. First is this year. पहले तो ये year important है prelims के लिए. Then the place, that is the location is important, and then the name of the person is important. ठीक है. तो आप अगर notes बना रहे हो क्लास में तो please simultaneously points note down करते जाओ. As it is, don't copy paste the slides. No, just a few pointers that I am underlining, you have to note them down. जो मैं points underline कर रही हूँ वो note down कर लीजिए. ठीक है. So Vasco da Gama, he was welcomed at Calicut by the King Zamorin. He was a local king who welcomed Vasco da Gama, and he was welcomed in 1498. He came here with 3 ships. The main purpose was trade. Ships क्यों? क्योंकि trade उनका main purpose था.
and it is generally regarded as the beginning of new era in world history. Now here one question can be framed from GS paper 1 perspective. GS पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. एंट्रिंग ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री. एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, एंट्रिंग ऑफ पोर्टुगीज और एंट्रेंस ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वाज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री. एक्सप्लेन. Okay, or the question can be Vasco da Gama came to the port of Calicut with 3 ships, which is regarded as beginning of new era in world history. ठीक है, explain. फिर से explain आ जाएगा. तो आपको explain करना है कैसे. No, the name of the ships is not important. This is UPSC CSE. यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ठीक है, कि नाम, शिप्स का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. ठीक है, ईयर इज इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, रीजन इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो ईयर, नाम, लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है, बट शिप्स कौन सी शिप्स में आए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है जीएस पेपर 1 में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. नाउ व्हाट डू यू थिंक दैट वास्को द गामा व्हेन ही एंटर्ड इंडिया वाज इट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री? यस और नो? जब वास्को द गामा भारत में आए तो क्या वो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया पड़ाव था, एक नए चैप्टर की शुरुआत थी? यस और नो? यस, द आंसर इज यस, बिकॉज वन केम एंड द अदर्स फॉलोड. एक आया, पीछे पीछे बाकी सब भी आते चले गए. एंड व्हेन all of these Europeans they entered India, first of all purpose was trade, secondly they started interfering into the politics of India, and that highlighted the disunity among the rulers in India. जैसे जैसे यूरोपियंस भारत में आए, इन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया. ट्रेड के साथ साथ इन्होंने भारत में इंटरफेयर करना शुरू किया. इंटरफेरेंस की वजह से क्या पता चला कि अपने ही रूलर्स में यूनिटी नहीं है, अपने ही जो रूलर्स हैं उसमें एकता नहीं है. देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया अमंग्स द रूलर्स इन इंडिया. दिस वाज द प्रूफ that this was the entrance of Portuguese or the entrance of Europeans was a start of new era in world history. तो ये बात सबको समझ आ गई. this line is important and now I think that you should have understood this line by now. Now British were not the only trading nation, as we all know. The Dutch also came to India. The Danes also came to India. Danes मतलब जो Spanish speaking लोग होते हैं. ठीक है, The Portuguese also came to India and the French also came to India. French भी इंडिया में आए थे and Britishers तो थे ही थे यहाँ पर. So these 4-5 Europeans, they entered India and they started establishing their ports and trading facilities in India. They also started constructing their forts in India, and we all know that forts are of utmost significance. Why? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किले बनाना इतना ज्यादा बड़ी बात क्यों हुआ करती थी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, प्लीज राइट इट डाउन. फोर्ट्स वर द सिंबल ऑफ पावर. ठीक है, फोर्ट्स जो हुआ करते थे ना, वो शक्ति का प्रमाण हुआ करते थे, सिंबल ऑफ पावर, बिकॉज ऑल द आर्म्स, एम्युनिशंस, वेपन्स, ट्रेजर, वेल्थ वर स्टोर्ड इन द फोर्ट्स. जितने भी फोर्ट्स हुआ करते थे ना, वहां पर सारी आपकी ज्वेलरी, ट्रेजर, आपके जितने भी खजाने होते थे, वेपन्स होते थे, बढ़िया बढ़िया सैनिक हुआ करते थे. द सोल्जर्स, द हाई क्वालिटी सोल्जर्स, एवरीबडी यूज्ड टू बी देयर इन द फोर्ट्स. वहीं पर तैनात किया जाता था, राइट? तो इसीलिए फोर्ट्स को सिंबल ऑफ पावर माना जाता था. एंड द ब्रिटिशर्स वर कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स इन इंडिया. द फ्रेंच वर कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स इन इंडिया. They were indirectly trying to show the other people of our country that we are here to stay. Indirectly वो क्या बताने की कोशिश कर रहे थे सबको कि भाई अब हम यहाँ पर टिकने वाले हैं, जमने वाले हैं. ओके, एंड देयर वर मेनी रूलर्स हु वर ओपोजिंग दिस एक्टिविटी. बहुत से रूलर्स थे जो कि पसंद नहीं कर रहे थे. दे वर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग और कंस्ट्रक्टिंग फोर्ट्स इन इंडिया. And this is how the Britishers, and not just the Britishers, the French also, the Portuguese also, they started establishing themselves. धीरे धीरे अपने आप को ट्रेड की आड़ में यहाँ पर जमाना शुरू कर दिया. Okay, now the question आ सकता है आपका, what were the factors that led to the advent of Europeans in India? ठीक है, write down this question. What were the factors that led to the advent means coming of Europeans, entrance of Europeans in India. इंडिया में आना, कहीं आना, उसको हम एडवेंट बोलते हैं या स्टार्ट आप बोल सकते हो. ठीक है,
So this can be the question and they can ask this question for 15 marks. 15 marks या 200 वर्ड्स में वो आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए दे सकते हैं. 15 marks means 200 words. 200 words means 2.5 pages. 200 वर्ड्स का मतलब होता है कि आपका आंसर जो होगा वो कम से कम 2.5 पेज में आना ही चाहिए, उससे कम नहीं होगा. ठीक है, जितनी स्पेस दी जाती है. सो इन दिस क्वेश्चन, ये जीएस पेपर 1 में आपका क्वेश्चन आ सकता है. दिस क्वेश्चन कैन कम इन जीएस पेपर 1. इन दिस क्वेश्चन हाउ विल यू फॉर्म द इंट्रोडक्शन. आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे? First of all, you will start with the entrance of Vasco da Gama. This will be the introduction. ये आपका introductory paragraph हो सकता है and entirely ये पूरा का पूरा copy paste नहीं करना. This is a hint which I have given. You have to summarize it into 3 lines. Always remember your introduction should be within 3 lines. आपका जो introduction होना चाहिए ना 3 या 4 लाइन में. Why only 3-4 lines? Because you have to invest the rest of the word limit in writing the main body of the answer. जो मेन बॉडी होता है आंसर का, वो मेन डिमांड होता है ना एग्जामिनर का, तो आपको आपका वर्ड लिमिट सेव करना है. ठीक है, आपके पेजेस सेव करने हैं, बॉडी ऑफ द आंसर में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इसलिए इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए. So you will start with writing about Vasco da Gama, who came at Calicut in 1498. That started the beginning of new chapter in the history of India. इंडिया की हिस्ट्री में ही एक नया चैप्टर, नया पन्ना किसने जोड़ा? वास्को द गामा ने जोड़ा. एंड फॉलोइंग वास्को द गामा द पोर्टुगीज केम, द डच केम, द फ्रेंच केम, अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो केम टू एस्टैब्लिश कमर्शियल रिलेशंस विद इंडिया. भारत के साथ कमर्शियल रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए पीछे पीछे वास्को द गामा के लाइन लगती चली गई. ठीक है, इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गया. The first factor that you will explain is weak rulers or disunity. The local rulers, they had no brotherhood, no sense of unity among themselves. All were power hungry. सबके सब क्या थे? Power hungry थे. Every ruler wanted to rule independently. कोई किसी के साथ मिलके या किसी के अंडर रूल नहीं करना चाहता था, सब अपना इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे. बिकॉज ऑफ दैट ओनली सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर फॉर्म्ड. इसी की वजह से तो ये महत्वाकांक्षा जो बढ़ गई थी, एम्बिशन बढ़ गया था, इसी वजह से तो अलग अलग स्टेट्स बन गए थे. रीजनल इंडिपेंडेंट, बंगाल, ओडिशा, एंड देन देयर वाज बिहार, राइट. अलग अलग स्टेट्स, हैदराबाद, so Carnatic region. So these were small different states which were trying to independently rule the country. So weak rulers is the first reason. ठीक है, इंडिया में एम्बिशंस ज्यादा थे, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी. एंड इन द मुगल एम्पायर विच वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी विच वॉज रूलिंग द एंटायर कंट्री आफ्टर औरंगजेब, ऑल द मुगल्स वर लेटर मुगल्स एंड दे वर वीक. बहुत वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब के. सारे मुगल्स, लेटर मुगल्स वीक थे. ऑल ऑफ देम वर द पपेट्स इन द हैंड ऑफ देयर ओन मिनिस्टर्स. अपने ही मिनिस्टर्स, अपने ही निजाम के हाथों गुलाम थे. So Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers and he established control over a large part of territory which the later Mughals lost. जो later Mughals थे अपने ही कह सकते हो आप मिनिस्टर्स के अंदर गुलाम बन के रहते थे, ऐश करते थे, अय्याशी करते थे. उनके मिनिस्टर्स उनके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं और ऐसे उन्होंने पूरे मुगल डायनेस्टी की खत्म कर दिया. ठीक है, जितना भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था लेगेसी, पूरी लेगेसी खत्म कर दी. सेकेंड रीजन इज the vast wealth of India, right? This is the reason why these Europeans like bee entered into India. देखते हो ना, honey pot होता है. If there is a honey pot which is kept, so the bees will fly over this pot. They will get attracted towards this pot. Just like the ants, they get attracted towards the sugar cubes. जो एंड्स होती हैं, चींटियां होती है, चीनी की तरफ कहीं से भी सूंघ कर आ जाती है ना, ऐसे ही यहाँ पर सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को. इंडिया वॉज दी golden bird and so all of these Europeans they were attracted to India. यहाँ पर कम दाम में खरीदते थे स्पाइसेस, बाहर जाके पैसा कमाते थे हाई प्राइसेस में बेचकर, तो उनका तो प्रॉफिट हो रहा है ना. इट इज सेड दैट व्हेन वास्को द गामा फर्स्ट केम इनटू इंडिया एंड व्हेन ही परचेज्ड ऑल द स्पाइसेस एंड ही वेंट बैक टू हिज कंट्री एंड सोल्ड इट, उसको 60 टाइम्स ज्यादा मुनाफा हुआ था. ओवर एंड अबव हिज एक्सपेंडिचर, जो इंडिया में आने में पैसा खर्च हुआ था ना, उससे 60 गुना ज्यादा उसने प्रॉफिट कमा लिया स्पाइसेस बेचकर. 60 टाइम्स प्रॉफिट, राइट, आफ्टर सेलिंग द स्पाइसेस व्हिच ही परचेज्ड फ्रॉम इंडिया. ओवर एंड अबव हिज कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ही अर्न्ड 60 टाइम्स द प्रॉफिट. सो यू कैन इमेजिन व्हाई दे वर अट्रैक्टेड टू इंडिया. आप देख सकते हो कि इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्टेड थे. शुरू में तो पागल ही बनाते थे, सस्ते में यहाँ से खरीद के बाहर खूब महंगा बेचते थे.
ठीक है। तो ये वास्ट वेल्थ जो थी इंडिया की, प्लस कॉटन, कॉटन के लिए भी यहाँ पर आए थे। वी हैड सच रिच हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस, हमारी हिस्ट्री काफी रिच है। नाउ सेकंड इज हेवी डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज like spices, like silk. And why only spices? Spices क्यों? बिकॉज जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो स्पाइसेस के लिए फेवरेबल है। और बाहर जो स्टेपल डाइट होती है यूरोपियंस की, वो मीट ही होती है। उसको कुक करने के लिए दे रिक्वायर स्पाइसेस विच इज अवेलेबल इन इंडिया। तो इसीलिए ये लोग भारत की तरफ दौड़े चले आते थे, ठीक है। So there were precious stones also which were found in India. इंडिया में काफी precious stones थे जो पाए जाते थे, and that is why the demand for Indian commodities was very high. Plus it was very cheap also. Cheap means बहुत सस्ता मिल जाता था. The value in terms of quality was very high, but बहुत सस्ता मिल जाता था. It used to cost very minimal to purchase these commodities. That is why the Europeans were attracted towards India. Next is advancement in navigational technologies. After Vasco da Gama, the navigational technologies of the Europeans also advanced. इन लोगों की जो navigational technologies होती थी ना, GPS जो इनके दिमाग में फिट था, ठीक है, कि समुद्री रास्ते ढूंढने की जो इनकी एबिलिटी थी, टेक्नोलॉजीज थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। बिकॉज द अरब्स दे क्लोज्ड द लैंड रूट, दैट इज वाई दे अडॉप्टेड द सी रूट टू एंटर इंडिया। ये सी रूट के थ्रू क्यों आए? क्योंकि जो लैंड रूट था ना, वो अरब्स ने ब्लॉक कर दिया था यूरोपियंस के लिए। और ये जो यूरोपियंस थे, इनको स्पाइसेस की जरूरत थी, तो इसीलिए इन्होंने सी का रास्ता अपनाया। बिकॉज द अरब्स कुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सी रूट, सो दे एक्सप्लोर्ड द सी रूट एंड व्हाइल एक्सप्लोरिंग दे केम अक्रॉस इंडिया। एक्सप्लोर करते करते ये भारत तक आए, और भारत जब आए तो इनके तो सारे रास्ते ही खुल गए। फ्रॉम इंडिया दे ऑल्सो डेल्व्ड डीपर इनटू अदर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया से ये बाकी की नेबरिंग कंट्रीज में भी गए, ठीक है। So in 15th century, Europe achieved great advancements in the art of shipbuilding and navigation, because of which it was like an incentive to them to further explore India. इन लोगों को एक तरह से इंसेंटिव मिल गया, जैसे जैसे इन्होंने शिप बिल्डिंग में महारत हासिल करी, इनको इंसेंटिव मिल गया, ये इंडिया में एंटर करते ही चले गए। इंडिया ही नहीं, आसपास की कंट्रीज भी एक्सप्लोर कर ली इन लोगों ने। And next reason is quest of expansion of market. Now एक बार शेर को अगर खून चटा दिया जाए तो शेर पूरा का पूरा अटैक कर देता है ना मीट के ऊपर या इंसान के ऊपर, राइट। बहुत खतरनाक होता है। अगर शेर को आपका ब्लड का टेस्ट मिल जाए ना, फिर आपका उसका एक रूम में रहना खतरे से खाली नहीं है। सेम थिंग हैपेंड विद द यूरोपियंस। एक बार ट्रेड किया वास्को द गामा ने, फिर से आया, और वास्को द गामा यानी कि पोर्टुगीज को फलते फूलते देख आसपास की यूरोपियन नेशंस भी सोच में पड़ गई कि भाई इंडिया में ऐसा क्या है जो ये इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बाकी सब भी पीछे पीछे आ गए। और फिर जब वो एक बार आ गए मार्केट में, एक बार जब आप बिजनेस में घुस जाते हो तो आप एक्सपेंशन ही करते हो। ये नहीं कि चलो एक बार प्रॉफिट हो गया बिजनेस छोड़ देंगे। यू ट्राई टू एक्सपैंड वंस यू गेन प्रॉफिट वन टाइम। That is why Vasco da Gama, when he attained gain or profit from the business or the trade which he was doing in India, he wanted to expand. He wanted to delve deeper into the market. Similarly, the other Europeans also tried to expand the market. Companies were formed. French East India Company, British East India Company, Dutch East India Company. Companies बननी शुरू हो गई because they were expanding. They were expanding their business. They were expanding their market. There was growth which was seen in European nations. ठीक है। तो इनकी जो कैपिटलिस्ट डिजायर थी उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने काम मार्केट एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। एंड यू ऑल नो दैट मटीरियलिस्टिक डिजायर्स नेवर गेट सेटिस्फाइड, नेवर गेट फुलफिल्ड। यस और नो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So please let me know if all these 5 points are clear. ये सारे जो 5 points है क्लियर है तो मुझे बताओ, तभी आगे बढ़ा जाएगा। If these points are clear, let me know. Okay. We have completed the demand of the examiner. We have given him the reasons why the Europeans came into India. 5 reasons हमने दे दिए, but what now? What next? We have to conclude the answer also. यही खत्म नहीं कर देना। Sometimes I have checked many papers, many answer sheets of the students in the mock test. And what the students do, that when the question comes, they directly answer the main demand of the question examiner and they end the question. For example, अगर ये question मैंने mock test में दिया था and the students what they did, they just wrote the factors and that's it, हो गया। No, this is wrong. When you are writing the answers ना, they are testing your administrative quality.
इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फेस टू फेस यू फेस द एग्जामिनर बोर्ड, द बोर्ड ऑफ द इंटरव्यू पैनल, एंड फेस टू फेस यू आंसर देयर क्वेश्चंस, राइट? तो फिजिकली आप वहां पर होते हो, बट इन मेंस थ्रू योर राइटिंग दे आर टेस्टिंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। ठीक है, तो मेंस में क्या होता है कि वो आपकी लिखकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, आपकी राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग स्किल्स के थ्रू टेस्ट करते हैं। So in that way, you have to make sure that you are writing the answers like an administrator. अगर एडमिनिस्ट्रेटर से रिपोर्ट मांगी जाए तो वो कैसे देगा? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन में उसके ओपिनियन होते हैं, राइट? बॉडी में जो मेल रिपोर्ट की डिमांड की गई है, रिपोर्ट के फैक्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में वो अपनी ओपनिंग लाइन देता है, ठीक है? अपॉन दिस रिपोर्ट ही गिव्स एन ओपनिंग लाइन, ओपनिंग 3-4 लाइन्स। अगर आपका इंट्रोडक्शन यानी कि बिगिनिंग, इनिशियल्स अच्छे होंगे तो आपकी रिपोर्ट पढ़ने का मन करेगा। रिपोर्ट पढ़ने के बाद फिर आपके ओपिनियंस देखे जाएंगे, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या ओपिनियन है उस रिपोर्ट के ऊपर, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग टू दिस रिपोर्ट। Okay, similarly in question in mains you will write the introduction, you will open your answer, ठीक है? And introduction इसके through this introduction you can earn bonus marks also. Trust me, this is very important part of your answer. Then the main demand that you have to fulfill, and conclusion में what you will do, you will add value. कुछ value added points आप लिखोगे जो इस report को enrich करेंगे. So similarly in this question also we have written the introduction, we have written the body of the answer. Now we will end the answer with a conclusion. Value add points डालेंगे हम, ठीक है? So during the second half of 19th century and the first half of 20th century, powerful national struggle against British imperialism developed in India. And this struggle was the result of clash of interest between those of Indian people and those of British rulers. So here, first we have introduced the answer by writing about Vasco da Gama, who was the first European who came to India. Then we fulfilled the demand of the examiner, factors that led to advent of Europeans in India. And now we will conclude by saying that ये जो Europeans India में आए थे, these Europeans who came to India, we were not mute spectators. We were not just watching them enter India and exploit India. No, we also started our struggle against these people. ये जो हमने आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि यूरोपियंस में सबसे पहले कौन आया था, बॉडी ऑफ द आंसर में बताया क्यों कौन से फैक्टर से जिससे ये आए. नाउ इन द कंक्लूजन वी विल टेल द एग्जामिनर कि हम चुप नहीं बैठे रहे. वी वर नॉट जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग दीज यूरोपियंस कम एंड एक्सप्लॉइट इंडिया, कि हम बैठे बैठे देख रहे थे आओ लूटो और चले जाओ. नहीं, वी स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट देम, एंड दिस स्ट्रगल वाज अ रिजल्ट ऑफ द feeling of nationalism in the hearts of Indians. Because body of the answer में हमने क्या बताया है, what we have told the examiner, weak rulers. But now in the conclusion we are telling that by the 19th century, the each and every common citizen of India was becoming a nationalist. ठीक है, रूलर्स वीक थे जिनकी वजह से ये आ गए, बट इनको भगाया हम जैसे कॉमन सिटीजन्स ने, कॉमन आम नागरिक ने. ठीक है, this is just a static question, but the difference is that we have presented it in a different style. तो आपका स्टाइल चेक होगा मेंस में, जो कि प्रैक्टिस से डेवलप होगा. the style will develop by practice. ठीक है, so the Europeans, who were the Europeans who entered India? The Portuguese. They came in 1498. remember the year. they can in prelims, ये आपके prelims के लिए important है. ठीक है, this is important for prelims. So prelims के लिए this is important that the years you have to chronologically remember the year of the advent of Europeans. आपको chronology याद रखनी है. ठीक है, Portuguese came in 1498, English East India 1600, Dutch East India Company 1602, Danish East India Company 1616, and French East India Company were the last to come in India 1664. ये लास्ट आए थे, बट ये टिके काफी समय तक थे. ठीक है, सो द यूरोपियंस, पोर्टुगीज, ये आपको सारे लाइन से याद रखने हैं. नाउ व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया? एज यू ऑल नो, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडियाज वेल्थ, इंडियाज कॉटन, इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, स्पाइसेस, राइट, एंड दे वर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द ट्रेड रूट्स. यहाँ पर ट्रेड रूट्स भी एक्सप्लोर कर रहे थे. दे हैड बिल्ट अमेजिंग शिप्स, उनकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया थी. दैट इज व्हाई इट वाज इजी फॉर देम टू एंटर इनटू इंडिया. नाउ वी ऑल नो दैट द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम, राइट. हमें ये तो पता चल गया कि पोर्टुगीज यहाँ पर आए थे, वास्को दा गामा.
So we will study at a glance, we will look at their rise and fall, कैसे यहाँ पर उनका इंक्रीमेंट हुआ और कैसे धीरे धीरे वो घटते भी चले गए अपनी पोजीशन में. So in 1498, as we all know, it was the year of arrival of Vasco da Gama. ये वास्को द गामा के अराइवल का ईयर था, okay, in Calicut, and he was welcomed there by the local king called Zamorin. Zamorin ने इनका स्वागत किया था. In 1503, he established first Portuguese port at Cochin. Now the years I have listed them down and the events that took place at that year, and this chart is important for prelims. You can take a screenshot of this chart, or you can save this particular PDF which I will upload on my Telegram channel in your mobile phones or in your laptop or desktop PC. तो आप कहीं भी इसको सेव कर सकते हो, मैं PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है. और प्लीज रिवाइज दिस चार्ट फॉर योर प्रीलिम्स. ये चार्ट प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना. 1503 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट, फोर्ट ना कि फोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्ट की, किले की बात कर रहे हैं, एट कोचिन. 1505 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकंड पोर्टुगीज फोर्ट एट कैननोर. 1509 defeat of combined fleet of Gujarat, Egypt and Zamorin by Portuguese governor Francisco Almeida. Now I hope you all have heard about Almeida if you have started studying history. अगर आपने हिस्ट्री शुरू किया है तो आपको पता होगा this Francisco Almeida was highly ambitious person. ये पोर्टुगीज गवर्नर थे और ये काफी एम्बिशियस थे. हिज मेन एम वाज टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ हियर इन इंडिया. इनका एम था धीरे धीरे इंडिया में डोमिनेशन करना इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन. ही वांटेड टू डोमिनेट इंडिया, कि कैसे भी मैं इंडिया को अपने अधीन कर लूं. Then came Alfonso Albuquerque. ये भी सेम थे. He also had this, ambition to dominate in India administration wise. In 1510, Alfonso, the Portuguese governor, captures Goa from Bijapur, and in 1530 he declared Goa as Portuguese capital. 1530 में गोवा को इन्होंने पोर्टुगीज कैपिटल डिक्लेयर कर दिया. And since then, आज भी till today also we can find Portuguese culture and Portuguese tradition predominant in Goa. गोवा में आप देखोगे जो कल्चर है, जो ट्रेडिशंस है, वो काफी हद तक यूरोपियन है. Now coming on to the next important point, 1535 subjugation of Diu. What do you mean by the word subjugation? It means action of bringing someone under control or domination. दमन एंड दीव में आपने दीव का नाम सुना होगा ना. दीव को इन्होंने अपने कंट्रोल, अपने अधीन में ले लिया था, राइट. इस पे डोमिनेशन करना शुरू कर दिया था. 1559 Portuguese captures Daman. Daman was also captured by Portuguese. 1596 ouster of Portuguese by Dutch from Southeast Asia. Southeast Asia में Dutch were dominating and they ousted, they removed Portuguese from Southeast Asia and they controlled Southeast Asia. 1612 now Portuguese started falling down. अब धीरे धीरे Portuguese नीचे गिरना शुरू हो गए. In 1612 पोर्टुगीज लॉस्ट सूरत टू इंग्लिश, यानी कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे सूरत को हार गए. नाउ सूरत वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश. 1663 Dutch win all Portuguese ports on Malabar coast, that is the northern Kerala, to oust the Portuguese. Finally 1663 में आप देखेंगे कि डच ने पोर्टुगीज के सारे किलों पर हक जमा लिया था. And they were ousted. The Portuguese they were ousted. They lost their control of the Malabar coast. Malabar coast is northern Kerala. Okay, you can say this was the rise and fall of Portuguese. ये था आपका chronological arrangement of the rise and fall of Portuguese. I hope you have written this down or you have taken screenshot of this list. This list is very important from prelims perspective. Now coming on to the next important list. Now coming on to the formative years of East India Company. East India Company, जो British East India Company है, उनके formative years, that means the years when they started forming, the years when they started establishing, धीरे धीरे जब यहाँ पर बनना शुरू हुई, टिकना शुरू हुई East India Company, British East India Company. So 1600 was the time period when East India Company is established. Britishers were coming in India to trade, but there was no formal company to establish their trade. देखो ब्रिटिशर्स जो थी वो यहाँ पर आ रही थी, ठीक है, ट्रेड कर रही थी, बट एक कंपनी नहीं बनी थी, यानी कि एक कमर्शियल नाम नहीं मिला था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से व्हेन अन अकेडमी स्टार्टेड,
right? It started as a YouTube channel. उससे भी पहले when Roman Sarvatti was teaching, there was no company but he was teaching. But then he channelized his resources, his skills, and he formed a company. ठीक है? For example, if I am teaching right now, मान लो मैं यहाँ पर individual पढ़ा रही हूँ, that is my individual passion, I am teaching. But then if I channelize my skills, I will have to form a company. मुझे अपने skills को channelize करना है, larger platform देना है, तो मैं क्या करूंगी? एक ऐप बनाऊंगी, कंपनी बनाऊंगी, ठीक है? अपने स्किल्स को लार्जर प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए. Similarly, they were trading separately, but then the British government thought that we should form a company so that everything will happen at one place only. Distorted तरीके से नहीं होगा collection of revenue. सब लोग एक ही जगह कंपनी के नाम पे अगर ब्रिटिश जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड करेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, तो ज्यादा सही रहेगा. एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट होगा उसका एक्यूमुलेटिव टैक्स जाएगा. ठीक है? So that is why to ease the purpose of taxation and collecting revenue, East India Company was formed. ठीक है? And 1609, William Hawkins arrives at Jahangir's court. For what? For asking permission in order to lure Jahangir. जहांगीर को थोड़ा सा ल्योर करने के लिए, थोड़ा चापलूसी करने के लिए, राइट? और थोड़ा सा यहाँ पर परमिशंस लेने के लिए विलियम हॉकिंस आए. But at that time, na, when for the first time the Britishers came to Jahangir's court, Jahangir did not give them any permission. उन्होंने भगा दिया था. Why? Because the Portuguese were sitting over here. वो तो 1498 में यहाँ पर जमे हुए थे. Portuguese were pressurizing Jahangir because Portuguese knew that now these Britishers are coming and these other Europeans will come and they will try to copy us. They will try to imitate us. They will try to snatch away our profit. हम तो यहाँ पर टिक गए, ये तो सारा खेल समझ गए थे प्रॉफिट कमाने का, ट्रेड करने का, तो इनको समझ आ गया. अब ये बाकी यूरोपियंस ना हमें भगाने के चक्कर में है, यहाँ के राजाओं को पटाने के चक्कर में है. सो पोर्टुगीज दे स्टार्टेड क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन जहांगीर. सो जहांगीर एट फर्स्ट डिड नॉट अलाउ द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड ओवर हियर. इन्होंने शुरू में तो अलाउ नहीं किया, भगा दिया. बट लेटर ऑन व्हेन ब्रिटिशर्स टोल्ड जहांगीर दैट वी आर गोइंग टू ट्रेड ओवर हियर, ओके, whatever profit we will earn, we will give some part of that to you as taxes. So you are also getting benefit. Why are you listening to these Portuguese? These are just traders. ये तो traders है, राजा तो तुम हो, you are the king. You should take a decision. आपको decision लेना चाहिए. So later on, Captain Middleton obtains permission of Mughal governor of Surat to trade in India. तो 1611 में जब इन्होंने राजाओं का दिमाग थोड़ा सा घुमाया और कहा कि तुम राजा हो, तुम दूसरे की क्यों सुनते हो, जो हम कमाएंगे तुम्हें टैक्स देंगे ना, तो इसीलिए बाद में इनको सूरत में ट्रेड करने का क्या मिल गया? परमिशन मिल गई. ठीक है? 1613 परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड एट सूरत. अब आप देखो कि ट्रांजिशन 2 साल में ही इन्होंने ऐसा घुमा दिया यहाँ के राजाओं को कि परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली. व्हाई परमानेंट फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश्ड? बिकॉज व्हेन यू ट्रेड एट अ पर्टिकुलर प्लेस यू हैव टू स्टोर द गुड्स को स्टोर तो करोगे कि नहीं करोगे, या हवा में लेकर घूमोगे? स्टोर करोगे. ठीक है? तो स्टोर करने के लिए वही फैक्ट्री चाहिए. देन गुड्स को मैन्युफैक्चर भी करोगे, कुछ गुड्स में कुछ कमी है, फॉल्ट है, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, लेबर एम्प्लॉय करोगे. ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक जगह चाहिए होगी. यू विल रिक्वायर अ परमानेंट प्लेस टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, टू एम्प्लॉय पीपल. For that, permanent factory was established in Surat. Now they were also luring the Mughal kings by saying that we are generating employment opportunities in your country. आपके देश में हम बैठकर सिर्फ खा थोड़ी रहे हैं या सिर्फ आपको टैक्स दे रहे हैं, नहीं, हम तो आपके लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं. We are trading over here, so we need employees. So we will hire the Indians now. We are creating jobs. तो मुगल्स को लगा ये बात भी ठीक है. एंड एट दैट टाइम स्टार्टिंग में व्हेन दे पिच्ड देमसेल्व्स, जब उन्होंने अपने आप को पिच किया कि हम आपको टैक्स देंगे, हम आपको जॉब क्रिएशन करेंगे, दैट वाज टू सम एक्सटेंट a good point raised by the British East India Company. Why? Because today also when we Indians establish something, some factory or some business abroad, we also give them the employment opportunities. हम उनके लोगों को भी employment opportunities देते हैं. If the firms from abroad are establishing in India, they are providing employment opportunities, right? To some extent that pitch was correct. उस टाइम का जो पिच उन्होंने दिया था स्टार्टिंग में वो कुछ हद तक सही था, बट बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी, बिकॉज ऑफ डिसलॉयल्टी, बिकॉज ऑफ बीइंग अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द मिनिस्टर्स, दीज मुगल्स दे लॉस्ट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन.
ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रीड, ठीक है। 1615 कम्स, अब आता है 1615। सर थॉमस रो, हु वाज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ लंदन, अराइव्स एट जहांगीर कोर्ट। अब सर थॉमस रो जो कि एम्बेसडर थे किंग जेम्स वन लंदन के किंग के कोर्ट में, वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। एंड बाय 1680, दैट इज बाय after 3 years, he succeeds in obtaining 2 फरमान्स confirming free trade with exemption from paying bill. फरमान्स means एक तरीके से आप लाइसेंस बोल सकते हो या ऑर्डर बोल सकते हो, राइट। दे acquired the order from जहांगीर that they can trade in, I guess, बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये जगह थी। they can trade there, okay, without paying any tax, without paying any duty। कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, कोई बिल पे करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। एंड इनको ये पट्टी पढ़ाने में 3 साल लगे। सर थॉमस रो, ही वाज अ ग्रेट फ्लैटरर एंड ही आल्सो द ग्रेट फ्लैटरर ऑफ जहांगीर। एंड जहांगीर फ्लैटरी में आके और खुश होकर फरमान इशू भी करती है कि ठीक है, फरमान इशू कर देते हैं, आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है, आप कीजिए वहां पर ट्रेड। समझ आ गई यहां तक बात? Now coming to 1616, the company, British East India Company, establishes its first factory in the south in Mauchlypatnam. Now पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। बट इफ दे विल आस्क यू इन प्रीलिम्स, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ, वो कहां पर खुली थी? मौसलीपट्टनम में, ठीक है। In 1632, company gets golden फरमान from सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। अब इन्होंने एक और फरमान एक्वायर कर लिया, दे एक्वायर्ड अनदर फरमान फ्रॉम गोलकोंडा सुल्तान, that was known as golden फरमान, ensuring safety and prosperity of their trade. That means if somebody tries to attack the British East India Company, or if somebody tries to destroy the goods of the British East India Company, then the Sultan of Golconda will protect their goods, will protect their factory, their establishment from any such attack. तो ब्रिटिशर्स के गुड्स और उनकी फैक्ट्रीज की सेफ्टी और प्रॉस्पेरिटी की जिम्मेदारी गोलकोंडा के सुल्तान की होगी। सो दे वर टेकिंग फरमान, राइट, फरमान्स फ्रॉम दी सुल्तान्स, फ्रॉम दी rulers in India for safeguarding their products also and also for their prosperity. 1633, company establishes its first factory in East India in Hariharpur, which is Balasore in Odisha. तो अब ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? In north, in west, in east, in south, they are establishing their factories. धीरे धीरे अपने आप को establish करना शुरू कर रहे हैं। Indirectly they are very slowly and gradually trying to establish themselves. समझ आ गई बात सबको? Please let me know in the comment section if this much is clear. ठीक है? Now 1639, company gets the lease of Madras from local king. मद्रास की को लीज पे ले लिया इन्होंने। So when they are taking the states on lease, that means they are interfering into the administration. 1639 से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड मैनेजिंग पीपल। व्हेन यू अलाउ अ कंपनी टू मैनेज पीपल, टू मैनेज डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स, यू आर लेटिंग देम टेक अवे रेन्स फ्रॉम योर ओन हैंड्स, यू आर गिविंग स्पेस टू एनार्की। आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हो वहीं के वहीं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी स्टेट की रेन्स को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप रहे हो, दैट इज नॉट गवर्नेंस, ओके। 1651, company is given permission to trade at Hooghly in Bengal. 1662, British King Charles II is given Bombay as dowry for marrying a Portuguese Princess Catherine. Who gives the right to these Europeans to give a particular state as dowry? किसने राइट दिया है कि पूरे के पूरे भारत के स्टेट को डाउरी में, दहेज में दे देना? किसकी वजह से हुआ ये? बिकॉज ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ द रूलर्स डिड दीज यूरोपियंस एक्सचेंज स्टेट्स एज डाउरी? किसने शय दी इतनी कि ये स्टेट्स को, भारतीय स्टेट्स को डाउरी के तौर पे दे रहे हैं? द रूलर्स, द इल मैनेजमेंट ऑफ द रूलर्स। ये जो इल मैनेजमेंट है ना रूलर्स का, इसके वजह से क्या होता है कि ये धीरे धीरे यूरोपियंस का इंडिया में टिकना मजबूत हो जाता है। ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को बॉम्बे दे दिया गया दहेज के तौर पे।
राइट आप इसी से देख सकते हो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रूलर्स. दिस इज द एग्जाम्पल, द टिपिकल एग्जाम्पल 1662 में जो हुआ, दैट यू कैन कोट ऑल्सो इन योर मेंस आंसर राइटिंग. 1667 औरंगजेब गिव्स इंग्लिश अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल. औरंगजेब ने इंग्लिश को फरमान दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. 1691 company gets imperial order to continue their trade in Bengal in lieu of payment of rupees 3000 a year. So these कि आप 3000 साल का पे करो और आप यहाँ पर बंगाल में ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. तो ये जो रीजंस थे ना, इससे these years that I am discussing, these events that I am discussing, you should understand that these are the events that laid the strong foundation of British East India Company India, जो कि इतने सालों की गुलामी में तब्दील हो गया. And in 1717, Mughal Emperor Farrukh Siyar issues a farman, that is an order called Magna Carta of the company, giving the company a large number of trade concessions. Farrukh Siyar also was, he used to love flattery. इनकी चमचागिरी अगर करो तो बहुत खुश होते थे, और इसी के चक्कर में इन्होंने भी सबसे बड़ी गलती करी कि मैग्ना कार्टा इशू कर दिया कंपनी को, यानी कि लिस्ट ऑफ कंसेशंस इशू कर दिया, एक लिस्ट इशू कर दी कि आप यहाँ पर आप ट्रेड टैक्स पे नहीं करेंगे, यहाँ भी आपको एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ भी एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ ट्रेड कर सकते हो. एग्जेम्पशन की लिस्ट दे दी कि आप इन चीजों में ट्रेड करो, आपको टैक्स नहीं पे करना, आउट ऑफ फ्लैटरी. ठीक है. एंड दिस वाज द ईयर व्हेन फाइनली ब्रिटिशर्स दे हैड स्ट्रॉन्ग रूट्स इन इंडिया. फाइनली इनकी जो जड़ें हैं ना भारत में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जिनको काटने में काफी समय लगा. सबको समझ आ गई ये बात? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. इतना क्लियर है तो बताएं जल्दी से. ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मुगल्स, जब हम मुगल्स की बात करते हैं ना, ये एरिया जो आप देख रहे हो, दिस एरिया इन द ओल्ड इंडियन मैप, this entire area was under the control of the Mughals. ये सारा जो एरिया था ना, ये मुगल्स के कंट्रोल में था. So they were, you can say, the administering or they were controlling approximately 90% of the entire nation. 90% तो पूरा इन्हीं के पास था. But however they could not penetrate deeper into the south of India. इंडिया के साउथ में ज्यादा ये डीप में नहीं जा पाए, because before that only औरंगजेब died. औरंगजेब had plans to invade south also. औरंगजेब का प्लान था कि वो साउथ में भी जाएं, बट बिफोर दैट ही डाइड एंड द लेटर मुगल्स वर ऑफ नो यूज. लेटर मुगल्स का तो कोई काम ही नहीं था. ठीक है. उनको एडमिनिस्ट्रेशन का ए भी नहीं पता था, तो साउथ का ड्रीम क्या, वो जो था वो भी खो बैठे. ठीक है. तो द मुगल एम्पायर वॉज वेरी वास्ट एंड एक्सटेंसिव इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मुगल एम्पायर जो था काफी वास्ट था, but by the close of the century it had shrunk to a few kilometers around Delhi. You can see such a large difference. This entire area was under Mughal Empire, but at the end of the 18th century they were limited to this Delhi region only. पूरा सब कुछ खो बैठे थे, दिल्ली तक आ गए. Okay, Nizam ul Mulk, who was also a Nizam or minister or noble in the courts of the Mughal emperors, he also left the Mughals because of the mismanagement, and he created his own state which is named as, जल्दी से बताओ, निजाम उल मुल्क ने कौन सा स्टेट क्रिएट किया था मुगल से दूर हटकर? In the comment section. Hyderabad. The state was Hyderabad. Very good everyone. Hyderabad वो स्टेट था जो निजाम उल मुल्क ने स्टैब्लिश किया. एंड इफ यू हैव स्टडीड द चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी ना, इस एनसीईआरटी का अगर चैप्टर 1 आपने अच्छे से पढ़ा है, then you would know that Nizam ul Mulk was one of the most able general और able minister. अपने टाइम का बहुत ही एबल, बहुत ही काबिल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड कंपैशनेट मिनिस्टर था. ओके. बट द लेटर मुगल्स, they could not understand the value of a real gem. एक सही मिनिस्टर की वैल्यू समझ नहीं सके मुगल एम्परर्स. That is why the later Mughals were the reason why the Mughal empire deteriorated. Okay, and the first later Mughal after Aurangzeb was Bahadur Shah. औरंगजेब के बाद जो थे, ये पहले लेटर मुगल थे जिन्होंने कुछ रियल अथॉरिटी एक्सरसाइज की, एंड ही वाज द लास्ट लेटर मुगल टू एक्सरसाइज रियल अथॉरिटी, बिकॉज इनके बाद जो मुगल्स आए दे वर वीक. आफ्टर बहादुर शाह ऑल द मुगल्स, अदर मुगल्स, दे वर वेरी वीक. जहांदार शाह, राइट, ये रंगीला शाह, सो ऑल ऑफ दोज वर वेरी वीक. So Bahadur Shah I was the first and last of the later Mughal rulers to exercise real authority. He was a very dignified person, but there was one
फ्लॉ इन दिस मुगल एम्परर, इस मुगल एम्परर में एक फ्लॉ था. ही वॉज नोन एज शाह ए बेखबर. इनको ना शाह ए बेखबर बोलते थे. बेखबर मीन्स हु हैज नो आइडिया अबाउट हिज सराउंडिंग्स. Why he was known as Shah Bekhabar? Because when he used to be happy with someone ना, he used to give him everything from his treasury, from his wealth. मान लो ये किसी से खुश हो गए, किसी के काम से खुश हो गए, तो अपना पूरा का पूरा जो खजाना था वो लुटा देते थे. Okay, without even thinking about the accounts, without even thinking about the expenses of the administration, he used to give everything from his wealth or treasury to the person with whom he was happy. So he was known as Shah e Bekhabar. Bekhabar means absent-minded. तो अच्छे थे, अच्छे means he was a very educated person, very learned Mughal and very dignified. He used to have a self-respect, sense of self-respect, dignity, but no awareness about the wealth, the accounts, the treasury. ठीक है, समझ आ गई बात. तो ये इनमें कमी थी. एंड ही ऑल्सो अडॉप्टेड द कंसिलिटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द मराठास एंड राजपूत्स. उससे पहले औरंगजेब ही वाज अगेंस्ट मराठास एंड राजपूत्स, बट बहादुर शाह ही ट्राइड टू you can say cooperate with Marathas and Rajputs. He tried to befriend them. इन्होंने दोस्ती करने की कोशिश करी मराठास के साथ, राजपूत के साथ. बट विद द सिक्स he was not very happy. सिक्स के साथ इनकी इतनी बनती नहीं थी. बट हाँ, राजपूत मराठास को तो लेने की कोशिश इन्होंने करी. ठीक है, तो शाह बेखबर, the Mughal historians like Khafi Khan gave him the title of Shah e Bekhabar. He followed a policy of compromise towards nobles, granting them appropriate territories and postings, and he became the king at the age of 63 years. He adopted a tolerant attitude towards Hindus. Tolerant attitude means conciliate करने की कोशिश करी हिंदूज के साथ, collaborate, cooperate करने की कोशिश करी. His policy towards Marathas was also a cooperative policy, but he was not very happy in his heart to reconcile with Marathas. बस show off के लिए, दिखाने के लिए कि मैं मराठास से दोस्ती कर रहा हूँ, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, इन्होंने दोस्ती की. Then comes Jandar Shah. फिर आप क्या जाते हैं जानदार शाह. With the death of Bahadur Shah, a new element entered Mughal politics, and he was, the most weakest of all. ये सबसे ज्यादा कमजोर थे. He was the puppet in the hands of Zulfikar Khan, the minister. जुल्फिकर खान इनके कोर्ट में मिनिस्टर थे, उनके ही नक्शे कदमों पे चलते थे, उनके ही हाथों की कठपुतली थे ये. एंड ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर बहादुर शाह. ये जब इनकी डेथ हुई तो ये जो जहांदार शाह थे ना, ही सैट ऑन द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकर खान. Okay, so he was a puppet king, yes, and because of him only the legacy of puppet king started. जहांदार शाह की वजह से ही puppet kings की legacy start हो गई. ठीक है, he was very infamous in the books of history. हमारी history में ये बहुत ज़्यादा infamous है. Even Zulfikar Khan is not liked by many. He also had certain cruel policies. इनकी भी policies काफी cruel थी. So we'll discuss all these later kings in the next special class. ये सारे जो लेटर किंग्स है ना, हम नेक्स्ट स्पेशल क्लास में इनको कवर करेंगे. क्लियर? सो आई होप टुडेज सेशन वाज हेल्पफुल एंड एंजॉयबल फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी ने एंजॉय किया आज के सेशन में. आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास ऑन माय टेलीग्राम चैनल सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज. ठीक है, तो मैं आपका ये जो पीडीएफ है ना, मैं सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज टेलीग्राम चैनल है वहां अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो. ठीक है. So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. रात को आप 10 से 11 पढ़ने आए हो. Thank you so much. Keep studying, keep revising. Okay. Good night everyone.